So today we will be discussing a new module, that is the earth pressure and stability of slopes. So in the very first thing we will be discussing the earth pressure, then we will move on to the stability of slopes there. So in this new module we will be studying the two topics, that is first is the earth pressure, alright. Here we will be studying the classical theories, the Coulomb and Rankine's approaches for frictional and C5 soil. Then also we will be discussing the case of inclined backfill there, okay, when the backfill is inclined, and there are some graphical methods of earth pressure determination. So these are given by Kalman there, for example. So that we will be studying. When we talk about this second topic that we will be covering here in this module number 5, that is earth pressure and slope stability, is the stability of slopes. Now slopes can be finite and infinite, so that will be seeing that how those finite and infinite slopes are governing the different criterias. Then types of the slope failure, alright, then Kalman's method and method of slices are there. Then another method is stability number and chart, that we will be seeing there. Then is the Bishop's method. So these are the few topics that have been introduced in your syllabus, and we will be covering all these few topics there. Okay. So let us move on to the very first thing here, that is earth pressure on retaining walls. Now what is earth pressure? If you go by the term, okay, earth, in here we are denoting this as soil, okay. तो soil कितना प्रेशर लगा रही है? अच्छा, soil किस पे प्रेशर लगा रही है? रिटेनिंग वॉल्स पे. अच्छा, रिटेनिंग वॉल्स क्या होती हैं इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. Okay, so you have already seen that on highway or expressway you go, then there are some embankments such as like this. Okay, if the road is here, all right, and the expressway, if you go, let's say Yamuna expressway or something, so you can see the embankments there, and this is retaining some amount of soil, this is retaining some amount of soil at the back. Okay, here the soil is being retained. So these are the some type of what, retaining walls, because they are retaining the soil, they are not allowing the soil to move out. So these are the retaining structures. Alright, so structures which are built to hold back a soil mass is called as retaining structure. Like in this figure you can see that this is the structure, alright, this is the structure there which is there, and this is the soil which is being retained by this structure here. Alright, so when we talk about certain examples, so we can say retaining walls are there, sheet pile walls are also there which are very effective. Then crib walls are there. Crib walls, the picture which you are seeing here is of the crib wall. Now the speciality of this crib wall is that the openings here, alright, these will be providing the drainage, and when the drainage will be there, so you can say that stability will be maintained of that soil, of that slope also. So these are the crib walls there. Also the sheetings in case of excavations and the basement walls, they are also playing a major role there to retain the soil behind it. Okay. So this is the basic earth pressure कि soil कितना pressure लगा रही होगी, किस पे लगा रही होगी, retaining wall पे, जिसने उसको रोक के रखा है, क्योंकि ये सो soil है यहाँ पे, ओके, ये जो है बाहर की तरफ कुछ प्रेशर लगा रही होगी और ये वॉल क्या कर रहा होगा, उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहा होगा. सो दैट विल बी द मेजर स्टडी हेयर, एंड हाउ and what amount of pressure is being applied by the soil, that we have to take into consideration. Now see, the pressure exerted by the soil against an engineering structure or acting on a surface of surrounding soil mass is called as earth pressure. यानी soil कितना pressure लगा रही है. Okay, अच्छा, why this is of your importance, why we are studying this thing? Understand here that if you have to, let's say, design a retaining wall, and what happens there कि प्रेशर आपको पता है कि लेट्स से अगर आपने पानी की टंकी का डिज़ाइन करना है, देन वहाँ पे अगर पानी का प्रेशर आपको पता है कि 50 पास्कल लग रहा है, फिर 50 किलो पास्कल लग रहा है, इस तरह का कुछ भी एक 50 यूनिट्स का प्रेशर लग रहा है, और आप उसको डिज़ाइन करते हो 100 के लिए, देन व्हाट हैपेंस देयर, आपने उसको क्या किया, ज़्यादा अमाउंट के लिए डिज़ाइन किया, बट क्या 100 का रिक्वायर्ड था वहाँ पे? आपने तो थिकनेस जब बनाई होगी, आपने 100 के लिए बनाया होगा वाटर टैंक, और उस समय क्या होगा, थिकनेस आपने जो 50 के लिए डिज़ाइन करना था बट आपने 100 के लिए डिज़ाइन किया, देन इट विल बी हाईली अनइकोनॉमिकल, पैसा ज़्यादा उसमें वहाँ पे वेस्ट होगा. सो दैट इज़ देयर. सेफ्टी होनी चाहिए तो 50 की जगह 70 के लिए आप डिज़ाइन कर दो. ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कैलकुलेट करो तो 70 तक के लिए डिज़ाइन कर दो, बट 100 के लिए क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा. सो यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल द फोर्सेज दैट आर एक्टिंग सो दैट यू कैन डिज़ाइन द स्ट्रक्चर इकोनॉमिकली. सो that is the earth pressure, that is the engineering significance for this topic.
Now, and the material retained by the wall is called backfill. Okay, so if this is the retaining wall there and this entire portion is the soil that is being retained, okay, so this will be called as the backfill there. Okay, this is nothing but the earth that is maintained, the term has been given to it, that is called as the backfill. Acha, also see that if the surface of the backfill is inclined, then we term this additional part as surcharge, and this angle which it makes with the horizontal is called as surcharge angle. So, this beta here is nothing but the surcharge angle, and this is the horizontal portion, that is the backfill there. So, this is nothing but the total soil is there. When you take surcharge and backfill, you will be taking into consideration entire soil. अच्छा, यहाँ पे ये जो backfill है, हमने vertical forces सारे पढ़ लिए, ओके, कंसोलिडेशन में हमने बात करी थी और सीपेज में हमने बात करी थी, तो हमने कई सारे वर्टिकल फोर्सेस पढ़ लिए. अब ये वॉल क्या कर रही है, ये वॉल इधर की तरफ प्रेशर लगाएगी. अच्छा, जब ये इधर की तरफ प्रेशर लगा रही है तो क्या करेगी, दीवार को इधर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी. यदि ये पुश हो जाती है तब क्या होगा, फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इसी हॉरिजॉन्टल प्रेशर को हमें यहाँ पे मेजर करना है. So, this is the lateral pressure और the horizontal pressure is due to the lateral stresses in the soil mass. जितने भी स्ट्रेस यहाँ पे lateral direction में, horizontal direction में मेजर या डेवलप हो रहे होंगे, उनको हमें मेजर करना है. ओके, इसको हम lateral pressure या horizontal pressure बोल देंगे. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए यहाँ पे, the ratio between the lateral and vertical earth pressure is called as coefficient of earth pressure K. अच्छा, यदि मैं इसमें बात करता हूँ, so ये जो K है, ये क्या है, it is the ratio of lateral and vertical pressure. So, I can easily say that is the ratio of horizontal to vertical pressure. अब K की वैल्यू कितनी होगी, क्या ये 1 से ज़्यादा होगी, क्या ये 1 से कम होगी, ये डिपेंड करता है सिग्मा H और सिग्मा V. यदि मैं कहूँ कि सिग्मा H अगर ग्रेटर देन सिग्मा V हो जाए, ऑलराइट, अगर मैं ये केस लेता हूँ, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल वाले फोर्स से ज़्यादा है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो वर्टिकल वाले से ज़्यादा है, तब उस केस में क्या होगा, K की वैल्यू इज भी ग्रेटर देन 1. यदि मैं दूसरा केस लूँ जहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेसेस आर ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस, यहाँ पे क्या होगा, K की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी. यदि ये इक्वेट कर देते हैं अगर हम दोनों वैल्यूज़ को, तब क्या होगा, सिग्मा H इज इक्वल टू सिग्मा V, देन K इज इक्वल टू 1. सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेसेस दैट विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. अच्छा, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के, और यदि वो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है तो वो किस तरीके से डिफॉर्म करेगा. अच्छा, डिफॉर्मेशन किसके कारण होगा, डिफॉर्मेशन जो भी सॉयल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में जो भी प्रेशर लगा रही होगी उसके कारण डिफॉर्मेशन होगा. लेट्स से इफ दिस इज द रिटेनिंग स्ट्रक्चर देयर, ओके, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन इज द सॉयल, ऑलराइट. नाउ इफ दिस सॉयल विल बी एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन द रिटेनिंग स्ट्रक्चर, देन यहाँ पे कितना डिफॉर्मेशन आएगा, इस तरीके का. जो दीवार यहाँ पे खड़ी थी वो अब क्या हो गई, थोड़ी सी टिल्ट हो गई होगी, एंड दिस डॉटेड लाइन शो द डिफॉर्मेशन देयर. व्हेन यू टॉक अबाउट द सेकंड हेयर, दैट इज द ब्रेसिंग इन कट्स. नाउ व्हाट हैपेंस, देयर आर सपोर्ट्स व्हिच आर गिवन टू रिटेन द वॉल. अच्छा, यदि ये सॉयल ने भी प्रेशर लगाना इधर से शुरू कर दिया, तब क्या होगा, इक्वल डायरेक्शन से, इक्वल वैल्यू से इसको ये डिफॉर्म करेगा. सो यू कैन सी हियर, जो पहले दीवार यहाँ पे थी वो क्या हो गया, वो डिफॉर्म होके दिस डॉटेड लाइन कैन बी शोन टू यू that this entire force is given by what, the soil there. अच्छा, यहाँ पे ट्विन रिटेनिंग वॉल्स की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, ये जो सॉइल यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ऑलराइट, सो दीज टू विल बी व्हाट, एक्सर्टिंग some pressure, so this deformation will be like this here. So these are the twin retaining walls made for a cut there, because you have to, let's say, construct a road there or something, so that is prime importance. But this earth will be trying to push the wall in the inward direction. If you talk about abutment of a bridge, now if यहाँ पे अगर ये डेक है, अगर आपने मेट्रो या फिर कोई और स्ट्रक्चर वहाँ पे देखा हो, पिलर स्ट्रक्चर जहाँ पे ब्रिजेस और ये सब हो, तब ये वाला तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, बट ये सॉयल क्या करेगी, सॉयल कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी और इस टो के अबाउट टिल्ट करने की कोशिश करेगी. यहाँ से तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, सॉयल जब इधर की तरफ पुश करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ, तब क्या होगा, इधर पे डेक कुछ ना कुछ रोटेशन लगा रहा होगा, बट नीचे वाला इतना पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. अब क्या होगा, ये इस नीचे वाले पोर्शन के अबाउट ये टिल्ट कर जाएगा, विच कैन बी सीन हेयर. ओके, सो सम पार्ट विल बी
मूव्ड ऑन दिस साइड। अच्छा, अगर हम एंकर्ड शीट पाइल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एंकर जैसे आपने शिप में देखा होगा, तो समुद्र के तट पे शिप खड़ा है और एक एंकर लगा देते हैं, उससे क्या होता है, शिप रुक जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी है। यदि हम बात करते हैं, ये दीवार है, ओके, और दिस इज़ द सॉयल हेयर, दिस इज़ द सॉयल हेयर, तो ये एंकर जो है, दिस विल बी व्हाट, ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू द स्ट्रक्चर। और यहाँ पे यदि ये होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन आपको कितना मिलेगा, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बट यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एंकर नहीं था तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिला है। अच्छा, इन केस वी आर एंकरिंग दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, तब क्या होगा, तब सारे के सारे डिफॉर्मेशन कम हो जाएंगे। इसीलिए हम एंकर्ड शीट पाइल यूज़ करते हैं कि डिफॉर्मेशन जितना भी हो, जो भी सॉइल इधर की तरफ प्रेशर लगा रही है उसको हम रिड्यूस कर सकें। सो दीज आर द सम रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स एंड देयर मोड ऑफ डिफॉर्मेशन। नाउ अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल्स, वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, वाई वी आर स्टडिंग द एक्चुअली द लेटरल प्रेशर, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन वाला फोर्स तो समझ में आया हम लोग को, जब हमने कंसोलिडेशन देखा या सीपेज देखा तब हमने समझा वहाँ पे, या फिर पोर प्रेशर का कितना चेंज आ रहा था, वो चीज़ हमने वहाँ पे स्टडी करी। नाउ दिस लेटरल प्रेशर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल टेंड टू ब्रिंग अनस्टेबिलिटी इन द सॉइल मास। So we can easily say that it is a contributing factor in the stability of soil mass. यदि ये होता है तो ये किसी ना किसी तरीके से, अगर ये बाहर की तरफ पुश कर रहा होगा तो अनस्टेबल कर रहा होगा, अगर सॉइल को और कॉम्पैक्ट कर रहा होगा तो वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा होगा। अच्छा, ये जो लेटरल स्ट्रेंथ है ये किन किन चीज़ों पे ऊपर डिपेंड करती है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल प्रेशर हेयर, सेकेंड इज द लेटरल स्ट्रेन कंडीशंस, थर्ड इज द नेचर ऑफ सॉइल। ओके, सो दीज थ्री थिंग्स विल बी डिटरमाइनिंग कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि सॉइल फोर्स लगा रही है तो कब तक फेलियर नहीं अकर करेगा। तो ये तीन जो पॉइंट्स हैं दे विल बी डिटरमाइनिंग कि कितना स्ट्रेंथ मौजूद है सॉइल में इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नाउ इफ यू कैन सी सम टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल्स देयर, दिस इज द ग्रेविटी टाइप। अपने वेट के कारण क्या होगा, ये कुछ वेट लगा रही होगी, उसके कारण ये इसका डिफॉर्मेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये द सॉइल इज प्रेजेंट हेयर और ये सॉइल कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग जाए, अपना वेट इसका इतना ज़्यादा है कि वो कम डिफॉर्म होगी। ओके, यदि सॉइल का फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि डिफॉर्म कर दे, देन देयर विल बी सम टिल्टिंग। ओके, टिल्टिंग इन दिस डायरेक्शन। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द मोड ऑफ डिफॉर्मेशन इज देयर। इफ यू टॉक अबाउट कैंटिलीवर, लेट्स से सॉइल इस डायरेक्शन में यहाँ पे है। अब कैंटिलीवर में क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है जो यहाँ पे सॉइल होगी, ओके, यहाँ पे सॉइल, ये क्या करेगी, इतने पोर्शन को स्टेबल करने की कोशिश करेगी, और क्या होगा यहाँ पे अनस्टेबिलिटी जो आ रही होगी, ओके, जो ये पुश कर रहा होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, ये इसको रेजिस्ट कर रहा होगा। तो एक मोमेंट तो इधर की तरफ आएगा पुश करने का सॉइल का, बट ये कैंटिलीवर ये क्या करेगा, रेजिस्ट करा देगा। सो दिस सॉइल मास विल बी रेजिस्टिंग दिस मूवमेंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट काउंटर फोर्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे ही कैंटिलीवर टाइप का ही है, बट यहाँ पे हमने कुछ एडिशन ऐड कर दिए। यदि आप कुछ ऐसे एडिशंस ऐड कर देते हो डिफरेंट, अगर ये वॉल बहुत ही लंबी जाती है, ओके, और आप ऐसे ही करके एडिशन आप ऐड कर दे रहे हो, तब क्या होगा सॉइल में और दिस स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और दैट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू मोर एंड मोर स्टेबिलिटी। सो डिज़ाइन ऑफ दीज रिटेनिंग वॉल्स विल बी रिक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द अर्थ प्रेशर, कि सॉइल कितना प्रेशर लगा रही है, बिकॉज जितना भी दीवार में प्रेशर लगाएगी दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द डिजाइनर, बिकॉज द सॉइल एंड द स्ट्रक्चर आर वन एंड द not one and the same thing, but they are interacting as one and the same thing, okay, because soil is in contact with this structure and this structure is also in touch with the soil, so that interaction will come into the picture there, and it may lead to the failure. When the failure occurs, then the contact portion here will be the major factor. Okay, often the earth pressure is statically indeterminate, that means earth pressure are difficult to find out, so for evaluation we have to go for certain other tricks like graphical methods are there, and we will be also seeing what is the amount of strain there. When we study here in this topic, we will be seeing what is the amount of strain getting developed, and according to that strain we will be calculating the amount of earth pressure that is getting generated. अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं अर्थ प्रेशर थ्योरी में तीन प्रकार के अर्थ प्रेशर हो सकते हैं। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव प्रेशर एंड पैसिव प्रेशर। ओके, यदि इफ दिस रिटेनिंग वॉल इज देयर, ओके, और सॉइल इस तरफ प्रेशर लगा रही है, बट ये जो वॉल है दिस इज रिटेनिंग इट, ओके, इफ दिस वॉल इज नॉट मूविंग आउटसाइड,
ओके, एंड नो डिस्प्लेसमेंट इज गेटिंग शोन, तब उस समय हम क्या कह देंगे, दैट इट इज द अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट कंडीशन, क्योंकि दीवार तो मूव कर नहीं रही है, दीवार मूव नहीं कर रही है और कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखा नहीं गया है। तो इस केस में जो भी अर्थ प्रेशर वो लग रहा होगा, दैट विल बी डिटर्मिन्ड एज, दैट विल बी सेड एज अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। इफ यू टॉक अबाउट एक्टिव प्रेशर, हियर इफ द वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है उसमें समझिएगा इसको। इफ यू टॉक अबाउट एक्टिव प्रेशर, इफ द वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, अर्थ प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज since the shearing resistance mobilized in opposite direction. Okay, we'll see this thing. Passive pressure, see, if wall moves towards the backfill, then earth pressure will be increasing. अच्छा, इसको समझने के लिए let's say this is the active का case. Okay, this is the active pressure case. Now understand here, if this soil is pushing it outward, then what happens? This will be some deformation. Soil यहाँ पे फोर्स लगाया उसने और ये दीवार क्या हुआ, बाहर की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, यदि ये मूव करती है तो क्या करेगा, ये अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये क्या हो गया, अनस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है। अच्छा, यदि मैं एक सॉइल एलिमेंट को कंसिडर करूँ, ऑलराइट, इस सॉइल एलिमेंट को मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, समझिएगा इस चीज़ को, दिस इज द पॉइंट P, सॉइल एलिमेंट। अच्छा, कुछ वर्टिकल स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, ओके, दैट इज सिग्मा V, और क्या होगा, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, दैट इज लेट्स से सिग्मा H। अच्छा, ये जब हम स्ट्रेसेस कंसिडर करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कंसिडर करते हैं। अच्छा, इस कंप्रेसिव स्ट्रेस में ये क्या कर रहा है, सॉइल को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। बट इन द केस ऑफ एक्टिव प्रेशर, जहाँ पे सॉइल क्या कर रही है, बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, यानी सॉइल एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। सॉइल यदि एक्सपैंड करती है तो क्या होगा, ये सॉइल स्ट्रक्चर को बाहर की तरफ टिल्ट करा रही होगी, और यदि ऐसा होता है तो ये जो सिग्मा H की वैल्यू है जो कि कंप्रेशन में थी वो थोड़ी सी कम हो चुकी होगी। ओके, सो क्योंकि क्या होगा, अब जब एक्सपैंड हो रही है तो सॉइल का प्रेशर इधर की तरफ लग रहा होगा, तो जो लेटरल डायरेक्शन में फोर्स है वो क्या हुआ, वो कम हो गया। तो जो पहले सिग्मा H था वो अब क्या हो गया है, कम हो चुका है। सो सिग्मा V में तो कोई बदलाव नहीं आया, जो सिग्मा V लग रहा था वो तो वही लगेगा, एंड दैट विल बी गिवन एज व्हाट, गामा इनटू Z। बहुत ही सिंपल है ये, तो जितना भी यूनिट वेट है और जितना भी हाइट दैट इज देयर, दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अच्छा, जो सिग्मा वर्टिकल है इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसको सिग्मा 1 है, क्योंकि ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, क्योंकि इसमें तो कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। बट जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर था इन द केस ऑफ एक्टिव 1, वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर जा रहा है। अब वो डिक्रीज कर रहा है तो वी कैन इजीली से दैट सिग्मा H इन केस ऑफ एक्टिव 1 इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा 3, एंड सिग्मा V कैन बी रिटन एज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। Okay, so these are the two things which need to be taken into consideration in the case of what, active pressure. Okay, in the case of active pressure there. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि ये जो एंगल ये बनाता है that is what 45 डिग्री प्लस 5/2। ऑल्सो जब ये वेज, अगर हम इसको पूरा वेज ले लेते हैं, ओके, और ये पूरा हम मान रहे हैं कि ये इधर की साइड फेल कर रहा है। अच्छा, यदि इस साइड फेल कर रहा है तो क्या होगा, सॉइल इसको रोकने के लिए इस तरीके से प्रेशर या स्ट्रेस जनरेट कर रही होगी कि इसको फिसलने ना दिया जाए, और ये फिसलने के लिए क्या कर रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सो द शेयरिंग रेजिस्टेंस विल बी डेवलप्ड इन दिस डायरेक्शन, इन द अपवर्ड एंड इनसाइड वाला डायरेक्शन है। अच्छा, पैसिव प्रेशर में अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो एक्टिव प्रेशर हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया। सो दिस वन डायग्राम वॉज देयर which we have already discussed in the previous slide, that was there. Okay, now if you move on to the passive pressure, if the wall moves towards the backfill, all right, अब इस केस में क्या हो रहा है, ये दीवार इस पे प्रेशर लगा रही है। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, सॉइल कुछ ना कुछ कॉम्पैक्ट होगी। ऑब्वियस बात है, जब दीवार इधर पे जब प्रेशर लगाएगी तो क्या होगा, जो यहाँ पे सॉइल कंटेन्ड है इन दिस पोर्शन, दिस विल बी गेटिंग कॉम्पैक्टेड। अच्छा, कॉम्पैक्ट हो रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स विल बी इंक्रीजिंग। तो जो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स पहले सिग्मा H लग रहा था, अगर हम इस सॉइल एलिमेंट को लेते हैं, यदि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था, अब क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेसिव फोर्स और बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दीवार जो है इधर की साइड टिल्ट कर रही है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द सॉइल। यदि ऐसा टिल्ट होता है तो दिस सिग्मा H विल बी इंक्रीजिंग। यदि सिग्मा H इंक्रीज हो रहा है, वी कैन से इट एज सिग्मा 1, जो कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अच्छा, वर्टिकल स्ट्रेस में कोई चेंज आएगा क्या, वर्टिकल स्ट्रेस में अगर आप उसी पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हो तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो किसके डिपेंडेंट है, गामा के ऊपर, और किस डेप्थ पे आप उसको नोटिस कर रहे हो, दैट इज व्हाट, Z हेयर। सो सिग्मा वर्टिकल इज नथिंग बट गामा इनटू Z, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा
3 there. So that is the value of sigma h which will be increasing. So you can say it as sigma 1 there, and sigma vertical that is there, you can say that it is sigma 3, that is the minor principal stress. अच्छा, यहाँ पे जब ये प्रेशर लग रहा है तो ये इधर की तरफ मोबिलाइज होगा, और सॉइल क्या होगा, सॉइल में जो शेयरिंग रेजिस्टेंस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मोबिलाइज हो रहा होगा. अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज गिवन बाय व्हाट 45 डिग्री माइनस 5/2. This will be seeing that how this is getting derived, alright, and this is what 2h. Okay, so this is the entire, when you take this simple trigonometry there, you will be getting that this is h into cot 45 degree minus 5/2, and h is nothing but the retaining wall's height. So you can easily see that in the case of active pressure, the wall was moving away from the fill. Okay, backfill was there and the wall was moving away. In the case of passive pressure, the wall is moving towards the fill. So if you are denoting in terms of the lateral pressure, we can say that if P naught, alright, P0 or P naught is the active pressure at rest, amount of active pressure at, amount of earth pressure at rest, then we can easily say that this P naught is what we have seen in the various cases, that active pressure is what, lesser than P naught here, and then this PA is graphically given as this one. So this is the PA value. Okay. अच्छा, जब हम पैसिव प्रेशर की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, द वॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द फिल. अच्छा, इस केस में क्या हो गया, इस केस में द पैसिव प्रेशर वैल्यू इज व्हाट, ग्रेटर देन द P naught वैल्यू. ओके, सो PP इज ग्रेटर देन व्हाट, P naught, जितना भी प्रेशर लग रहा है दैट इज ग्रेटर देन. यहाँ पे क्या है, जो PA की वैल्यू है इट इज व्हाट, लेस देन P0 देयर. ओके, सो दैट इज देयर. अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रेन मोबिलाइज होगा दैट इज स्लाइटली लेसर, हल्का सा भी एक्सपैंड किया दैट विल बी मोबिलाइजिंग द एक्टिव प्रेशर. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पैसिव प्रेशर मोबिलाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट देखना पड़ेगा वॉल का. यदि वॉल बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रही है, 2 से 15% के बीच में मूव नहीं कर रही है, तब तक हम इफेक्ट नहीं देख पाएंगे कि कितना पैसिव प्रेशर लग रहा है. ओके, सो वॉल मूवमेंट के अकॉर्डिंग पैसिव प्रेशर और एक्टिव प्रेशर विल बी getting changed. अच्छा, very little movement, about 0.5% of horizontal strain is required to mobilize the active pressure. अच्छा, जब मैंने एक्टिव प्रेशर की बात करी, मतलब क्या कहा मैंने, सॉइल एक्सपैंड कर रही है. अच्छा, सॉइल एक्सपैंड कर रही है तो वो दीवार को क्या करेगी, बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी. It will be moving if this is the backfill here, okay, and if this is the wall here, so it will be trying to push the soil away from the backfill. अच्छा, बहुत ही थोड़ा स्ट्रेन चाहिए होगा, हल्का सा ही मूवमेंट होगा, सॉइल क्या कर जाएगी, जो वॉल को बाहर की तरफ पुश करने लग जाएगी. अच्छा, इस केस में क्या होगा कि द सॉइल विल बी बिकमिंग, द स्लोप विल बी बिकमिंग व्हाट, अनस्टेबल देयर, द रिटेनिंग वॉल विल बी बिकमिंग मूविंग आउट देयर, सो दैट इज देयर. अच्छा, however a relatively much larger movement, about 2% of the original strain for the dense sand, and in case of what, 15% for loose sand, they are required to mobilize the full passive resistance. अच्छा, ये एक्टिव प्रेशर क्या कर रहा है, सॉइल में इनस्टेबिलिटी ला रहा है. बट यदि पैसिव प्रेशर जनरेट होता है सॉइल के अंदर, तब उस समय क्या होगा, सॉइल में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी. ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं. अच्छा, ये यहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगी. डेंस सैंड के लिए 2% वैल्यू है स्ट्रेन की, जितना मूवमेंट चाहिए होगा, एंड लूज सैंड के लिए इट इज़ 15%. अच्छा, अगर हम एक स्टार्ट करते हैं इस रेस्ट की बात करके, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट से, हम इसके बाद एक्टिव प्रेशर का एनालिसिस करेंगे और पैसिव प्रेशर का एनालिसिस करेंगे. अच्छा, यहाँ पे समझते हैं, इफ़ सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी सेमी इनफाइनाइट, वी हैव टेकन सम assumption, homogeneous, elastic and isotropic material. It is possible to evaluate the earth pressure using the theory of elasticity. Okay, so we are using this elastic theory which we use in SOM. The stress and strain relationship is constant there. So we are using this theory of elasticity because there are no displacement at all in this case. Okay, ये कहाँ पे देखा जाता है, ये deep basement wall में आपने देखा होगा, alright, and U-shaped abutment of a bridge, इन दोनों जगहों पे आपने देखा होगा. अच्छा, यदि मैं थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ कर सकता हूँ तो मैं जो चेंजेस होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको भी पिक्चर में ले सकता हूँ. सो लेट अस से दैट एप्सिलॉन h इज इक्वल टू द स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. कितना चेंज आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, म्यू इज द पॉइजन्स रेशियो देयर, ऑलराइट, एंड E इज व्हाट, इलास्टिक मॉडुलस. So now you can see here that if we are considering this
soil element P, which is acted upon by the vertical stresses sigma V and the horizontal stresses sigma H. So इस केस में क्या हो रहा है, हमने एक P पॉइंट लिया है जो कि एट डेप्थ ऑफ Z है और उस पर जो है वर्टिकल फोर्सेज और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज लग रहे हैं. अच्छा, यदि मैं इसको कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर के रूप में लिखना चाहूँ, सो आई कैन ईजिली से दैट इट इज़ व्हाट सिग्मा H बाय सिग्मा V. एंड जब हम अर्थ प्रेशर की बात करेंगे तब मैं उस समय क्या बोल दूंगा, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की बात करेंगे जब हम, तो मैं उस समय इसको K नॉट बोल दूंगा. यदि जब हम एक्टिव प्रेशर की बात करेंगे तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, K A बोल दूंगा. और जब हम पैसिव की बात करेंगे तो आई विल बी सेइंग इट एज K P. अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसमें प्लेन स्ट्रेन कंडीशन के लिए, अच्छा ये चीज़ है रेस्ट में, सो दिस एप्सिलॉन H इज विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है, तो आप इसको कैसे करोगे कि स्ट्रेन विल बी 0. अच्छा, एप्सिलॉन H, दिस यू कैन इजिली से दैट सिग्मा H बाई ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा H बाई ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा V बाय ई. So these are the horizontal and vertical direction forces that are taking into place. अच्छा, sigma H by E minus mu times sigma H by E minus mu times sigma V by E will be equating to 0 because epsilon H is equal to 0. So we can simplify this thing and we come out to this value, that sigma H by sigma V is equal to K naught and that is equal to mu upon 1 minus mu there. So this K naught is what, nothing but coefficient of earth pressure at rest. अच्छा, वर्टिकल स्ट्रेस में मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस जैसा रहता है वैसा ही रहता है एंड दिस वर्टिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा वी देयर. ओके, एंड सिग्मा वी इज इक्वल टू व्हाट, गामा इनटू जेड. नाउ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिग्मा वर्टिकल आपको पता है, के नॉट आपको जो भी वैल्यू है वो है एंड दिस सिग्मा एच वैल्यू यू कैन ईजिली कैलकुलेट. ओके, सो दैट इज देयर, सिग्मा एच इज इक्वल टू पी नॉट earth pressure at rest, so it can be given by K naught into gamma Z. It is nothing but what, P naught is equal to K naught into sigma vertical. Okay, and this P naught is nothing but what, sigma H here. So these are the two values. Okay, understand here one thing, that what is the value of K naught. Okay, for K naught, for SANTS and NCC you can say that it is 1 minus sin phi dash, and for OCS it is what, K naught of NCS into root of OCR. This OCR is what, over consolidation ratio. Okay, so these are the few things where you can easily find out the value of the K naught value. Okay, the earth pressure at rest, the coefficient of earth pressure at rest. For dense sand it is 0.4 to 0.45, for loose sand it is 0.45 to 0.50, for NCS that is normally consolidated clay, it is 0.5 to 0.60, and for OCS it is 1 to 4. Now we will be discussing the dry and the submerged case in the next class, and also we will be discussing and moving on to the Rankine and Coulomb's theory. Thank you.